السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا ویلکم اور خوش آمدید کرتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے ریگلک اسلام۔ اس پہ ہم انفارمیٹیو ویڈیو اسلام سے ریلیٹڈ آپ کو پرووائڈ کراتے ہیں دوستو۔ تو آج جس ویڈیو پہ بات کرنے والے ہیں وہ ویڈیو ہونے والی ہے صلاح الدین ایوبی کی۔ جی آیا ہے دوستو، عالم اسلام کا ایسا ہیرو جس کی داستان سنانے کے بعد، جس کی کہانی سننے کے بعد ایک اسلامک جذبہ آتا ہے دوستو۔ تو بنا دیر کرے ہوئے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ ان کی اسٹوری بہت دلچسپ ہے اور کیسے انہوں نے یروشلم اور فلسطین اور مسجد اقصی کو فاتح کیا تھا، وہ سب آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے اور جانیں گے۔ تو بنا دیر کرے ہوئے دوستو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، آئیے۔ صلاح الدین ایوبی، صلاح الدین کے نام سے مشہور ایک بہادر اور مضبوط نوجوان کی آواز ابھرتی ہے۔ یروشلم اور مسجد اقصی صلیبیوں کے قبضے میں ہے۔ میں زندگی کا لطف کہاں سے لاؤں؟ میں کھانا کیسے کھاؤں اور چین کیسے پاؤں؟ میں رات کو سکون کی نیند کیسے سوؤں؟ تیار ہو جائیں، ہم ایک ایسی کہانی شیئر کرنے والے ہیں جو ہم سب میں نیا جذبہ جگا دے گی۔ ایک سچے اسلامی ہیرو، مسجد اقصی کے محافظ، خادم الحرمین، یروشلم کے فاتح، الملک ابو المظفر صلاح الدین ایوبی کی کہانی۔ اس ویڈیو کے لیے بھرپور ریسرچ کی گئی ہے جس میں اسکرپٹ رائٹنگ، وائس اوور اور ویڈیو ایڈیٹنگ شامل ہے۔ ہم اشتہارات سے پاک ایک فلاحی چینل ہے۔ حق کی اشاعت کے لیے مخلص رضاکاروں کی ایک ٹیم کام کر رہی ہے۔ اگر آپ حق کو پھیلانے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے مشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بغداد میں ایک مشہور کارپینٹر رہتا تھا۔ اپنے عمر کے آخری حصے میں اس نے زیادہ تر وقت اخروٹ کی لکڑی سے ایک شاندار ممبر تراشنے میں صرف کیا۔ اس نے ممبر بنانے میں اپنی تمام صلاحیتیں لگا دی۔ ممبر کی خوبصورتی سب کو حیرت زدہ کر دیتی تھی۔ کارپینٹر کی محنت سے بنے اس شاہکار ممبر کی شہرت دور دور تک پھیل گئی تھی۔ جب بھی کوئی بغداد آتا تو وہ کارپینٹر کو تلاش کرتا اور اس کے پاس آ کر کہتا، یہ ممبر ہمیں بیچ دو تاکہ ہم اسے اپنی مسجد میں لگائیں۔ مگر اس کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، اس ممبر کی منزل مسجد اقصی ہے۔ اس زمانے میں یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں تھا۔ صلیبیوں کو پوپ اور یورپ کی مسلسل سپورٹ حاصل تھی۔ سلجوکی سلطنت ختم ہو چکی تھی۔ اناطولیہ اور میسوپوٹیمیا کئی چھوٹی اسلامی ریاستوں میں بٹ گئی تھی اور وہ آپس میں مسلسل جھگڑتی رہتی تھی۔ مصر میں باطنیہ فاطمی فرقہ بن گیا تھا جس نے مسلمانوں کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ ان چیلنجز کے باعث یروشلم واپس لینا مسلمانوں کے لیے صرف ایک خواب تھا، ایسا خواب جو حقیقت سے بہت دور تھا۔ اس کے باوجود کارپینٹر پورے اعتماد کے ساتھ سب کو یہی جواب دیتا رہا، مجھے یہی کام آتا ہے، میں کاریگر ہوں، میں ممبر تراشتا ہوں۔ کاش کسی دن کوئی بہادر مسلمان اٹھے اور یروشلم آزاد کروائے تو یہ ممبر اپنی اصل جگہ پہنچ جائے۔ اس ممبر کی شہرت تقریباً ہر شہر میں پہنچ گئی تھی۔ جب لوگوں میں اس کی بے مثال خوبصورتی کی باتیں ہونے لگیں تو 7 یا 8 سال کے ایک چھوٹے بچے نے بھی یہ داستان سنی۔ وہ چھوٹا لڑکا صلاح الدین ایوبی تھا۔ ممبر کی داستان سنتے ہی ایک عزم اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، یروشلم عیسائیوں سے واپس لینا ہے اور ممبر اس کی اصل جگہ پہنچانا ہے۔ عراقی شہر تکریت میں پیدا ہونے والے صلاح الدین ایوبی کے والد کردش اور والدہ ترکش تھی۔ فوجی ٹریننگ میں دلچسپی کے باوجود انہوں نے پہلے دینی تعلیم کو ترجیح دی۔ انہوں نے لاجک، فلسفی، سوسیولوجی، فقہ، تاریخ، آرٹس اور سائنسز کے مضامین میں بھرپور علم حاصل کیا۔ صلاح الدین نے اپنی تعلیم دمشق کے حدیث یونیورسٹی میں حاصل کی۔ مسلمان انہیں ایک مثالی سلطان سمجھتے تھے جبکہ صلیبی انہیں ایک سچے اسلامی ہیرو کی نظر سے دیکھتے تھے۔ مشرقی اور مغربی دونوں تاریخ دانوں نے اپنی کتابوں میں ان کی تعریف کی ہے اور سب نے متفقہ طور پر انہیں ایک نیک، رحم دل، خوش باش، باہمت اور بہادر جنگجو بیان کیا ہے۔
जब इस बाकमाल शख्स की उम्र 26 साल हुई तो उन्होंने अपने चचा शेर को के साथ रियासत में कई जिम्मेदारियां संभाल ली। सलाहुद्दीन जैसे जैसे बड़े हुए, यरूशलेम की फतेह के लिए तकदीर उनका रास्ता बनाती गई। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? जंगी रियासत के सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने अपने ज़ेरे हुकूमत तमाम तुर्किश रियासतों को मुत्तहिद किया और एक जिज़वी इस्लामी इत्तेहाद कायम करके सलेबियों से कई शहरों को कामयाबी से वापस ले लिया। जब मिस्र की फातमी रियासत को बहरान का सामना था, तब यरूशलेम के सलेबियों ने अपना असर व रसूख मिडिल ईस्ट में फैलाने की कोशिश की। सलेबियों ने 1168 में काहिरा का घेराव कर लिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी अपनी नजरें मिस्र पर जमा ली, क्योंकि मिस्र का कंट्रोल पाने का मतलब अपने दुश्मन पर जंगी बर्तरी हासिल करना थी। फातमी रियासत ने नूरुद्दीन जंगी से मदद तलब की। सुल्तान ने अपने कमांडर्स शेरको और सलाहुद्दीन को रवाना किया। और शेरको ने पूरे मिस्र को सलेबियों से पाक कर दिया। इन कामयाबियों के बायस शेरको को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया गया, लेकिन ओहदा संभालने के कुछ ही अरसे बाद उनकी वफात हो गई। चचा की वफात के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के वजीर और मिस्र में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फौज के कमांडर भी बने। 31 साल की उम्र में उन्होंने रियासत के वली और मिस्र के वजीर के ये दोनों अहम ओहदे एक साथ निभाए। सलाहुद्दीन ने मिस्र का कंट्रोल पाने के बाद अपनी और तुर्की के खिलाफ मुजाहमत करने वालों यानी फातिमी और उनके साथ देने वाले सलेबियों और बाज़ंतीनियों का मुकाबला शुरू किया। मिस्र पर मुकम्मल कंट्रोल के साथ उन्होंने फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। अहले सुन्नत की हमायत में काम करते हुए उन्होंने सुन्नी मदरसे और नए इदारे कायम किए। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बातनिया फातमियों को ब्यूरोक्रेसी से निकाल दिया। आखिरकार 1171 में नूरुद्दीन जंगी के हुक्म पर उन्होंने बातनिया फातमी की हुकूमत को खत्म कर दिया। उस दौरान उन्हें एक इंतहाई गमनाक खबर मिली। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी वफात पा गए थे। एक तरफ वो रियासत के इत्तेहाद और सुल्तान की कायम करदा इस्लामी रियासतों की हम आहंगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां थे, जबकि दूसरी तरफ उन्हें सलेबियों का भी सामना था। उस जमाने के हर इस्लामी कमांडर की तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी की 3 आरज़ुएं थीं। मुसलमानों का इत्तेहाद महफूज रखना, यरूशलेम को वापस लेना और कस्तंतुनिया या इस्तांबुल को फतह करना। इस्लामी रियासतों का इत्तेहाद कामयाब जंगों और सलेबियों के खिलाफ जिद्दोजहद से मजबूत हो गया था। अगला मकसद यरूशलेम को वापस लेना था। काजी बहाउद्दीन इब्न शद्दाद यरूशलेम के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी की मोहब्बत और उमंग को इन अल्फाज में बयान करते हैं। यरूशलेम के लिए उनके गम और दुख का बोझ इतना ज्यादा था जिसे पहाड़ भी ना उठा पाते। यूं महसूस होता जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे के लिए गमज़दा हो। वो अपने घोड़े पर सवार होकर निकलते और मुसलमानों को यरूशलेम की आज़ादी की खातिर जिहाद के लिए बुलाते। वो मजमा से खिताब करते और पुकार कर कहते, ऐ मुसलमानों, इस्लाम की खातिर, इस्लाम के लिए। गम के आंसू हमेशा उनकी आंखों में होते, क्योंकि यरूशलेम सलेबियों के कब्जे में था। वो कहा करते, जब तक यरूशलेम और मस्जिद अल अक्सा सलेबियों के कंट्रोल में है, मैं कैसे मुस्कुराऊं, मैं कैसे इत्मीनान पाऊं, और मैं खाना कैसे खाऊं, और रात को चैन की नींद कैसे सोऊं। सलाहुद्दीन अय्यूबी यरूशलेम वापस लेने के लिए पुरअज़म थे, लेकिन यरूशलेम फतह करने से पहले सूरत हाल का बगौर जायजा लेना जरूरी था। उन्होंने महारत से कई गैर मुनज़्ज़म फोर्सेस को जमा और मुनज़्ज़म करके ताकत का तवाज़ुन अपने हक में बदला। उनकी बुनियादी तवज्जो लतीनी सलेबी रियासतों पर थी। इस दौरान यरूशलेम का बादशाह मर गया और गी ऑफ लुसिनिया उसका जानशीन बना।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कदम ब कदम आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने हल्ब पर कब्जा करने से पहले दियारबकर, औरफा, हैरान, रका, काबूर, नसीबीन और बहुत से शहरों को फतह किया। ये तमाम शहर यरूशलेम के रास्ते पर जंगी अहमियत के हामिल थे। सुल्तान ने सबसे पहले तिब्रिया शहर का घेराव किया। तिब्रिया की जंगी अहमियत बहुत ज्यादा थी। उनका मकसद यरूशलेम के बादशाह और उनकी फौजों को शुमाली फिलिस्तीन में तिब्रिया के करीब हित्तीन में लाना था, क्योंकि उन्होंने मैदाने जंग वहां ले जाने का मंसूबा बनाया था। हित्तीन अपने पानी के कुओं के लिए मशहूर था। सुल्तान सलाहुद्दीन ने पहले ही हित्तीन के रास्ते पर मौजूद पानी के कुएं कब्जे में ले लिए और उन्हें पत्थरों और रेत से भर दिया। चुनाचे पानी के कुएं इस्तेमाल के काबिल ना रहे। बादशाह और उसकी फौज हित्तीन में पहुंची तो वो कुओं को उस हाल में देखकर सख्त मायूस हो गए। पूरी फौज सहरा की सख्त गर्मी में प्यास और थकन की शिद्दत के साथ जंग लड़ने पर मजबूर थी। हित्तीन की जंग 4 जुलाई 1187 को शुरू हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन ने यरूशलेम के बादशाह गी अवलूसियां के ज़ेरे क़यादत सलेबी फौज को शिकस्त दी। इस कामयाबी के बाद सलाहुद्दीन ने तेजी से फतह की कार्रवाई शुरू कर दी। सलेबियों को होने वाले शदीद नुकसान से मुसलमानों को तकरीबन पूरी यरूशलेम की सल्तनत पर कंट्रोल हासिल हो गया। उन्होंने अक्का, तिब्रिया, इस्कलान, नाबलस, रमल्ला और गजा समेत बहुत से किले फतह किए। चंद ही हफ्तों में 20 सितंबर 1187 को सुल्तान ने यरूशलेम का घेराव किया। मंजनीक से शहर की दीवारों पर गोलाबारी की गई। जल्द ही शुमाल मशरकी दीवार कमजोर पड़ गई। मंजनीकें वहां लगाई गईं। कुछ देर बाद दीवार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। सलेबियों ने घेरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। ये जाहिर था कि वो ज्यादा देर शहर पर कंट्रोल कायम नहीं रख पाएंगे। उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से महफूज रास्ता तलब करते हुए अपनी जान बख्शी, फसलों की हिफाजत, घरों के तहफ़्फ़ुज़ और मुसलमान कैदियों की रिहाई के लिए ताउन की पेशकश की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने इन शराइत को कबूल किया क्योंकि वो मुसलमान कैदियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना और जंग को तूल देकर मजीद हलाकतों से बचाना चाहते थे। आखिरकार वाक़े महराज के मुक़द्दस मौके पर 27 रजब 832 हिजरी बामुताबिक 2 अक्टूबर 1177 को जुमादुल मुबारक के दिन यरूशलेम वापस ले लिया गया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की कामयाबी सिर्फ फौजी निज़ाम तक महदूद न रही, बल्कि उनकी कामयाबी से एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता रियासत का सूरज तलू हुआ। उनकी क़यादत में बेशुमार मदरसे, हस्पताल और मस्जिदें तामीर हुईं। ये इस्लामी दुनिया में इल्म के अरूज का ज़माना था। उस वक्त के उलमा को सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों में बुलाया गया। उलमा को अपना ताउन पेश करते हुए उन्होंने शानदार अलमी तरक्की की राह हमवार की। उस जमाने में उलमा और तलबा ने कई किताबें लिखी। अपनी तर्ज हुकूमत की बदौलत वो अपने बाद आने वाले कई हुक्मरानों के लिए रोशनी के मीनार बने। इस्लाम के इस अजीम सिपाही ने 4 मार्च 1193 को दमिश्क में वफात पाई। उनकी वसीयत के मुताबिक वफात के बाद उनका कफन एक नेज़े पर बांध के लोगों के सामने लाया गया और उसके साथ दमिश्क की गलियों में ये अल्फाज गूंजते रहे, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, मिस्र, यमन, शाम, फिलिस्तीन, यरूशलेम का फातेह सुल्तान सलाहुद्दीन आज इस कफन के सिवा दुनिया से कुछ नहीं ले गया। इससे इबरत पकड़ो और दुनिया के धोखे में मत आओ। उनकी जिंदगी का एक मकसद था और उस मकसद ने उन्हें जिंदा रखा। उन्होंने बताया कि एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद कैसा होना चाहिए। उनके सीने में धड़कता दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार, दुनिया में इंसाफ के क़याम का तलबगार और इस्लाम के हुस्न को ना आशना लोगों तक पहुंचाने का आरज़ूमंद था। यरूशलेम की फतह इस्लाम के हुस्न से आशना इस शख्स के हिस्से में आई। तो आखिर हम इस फतह से महरूम क्यों हैं? क्योंकि हमें पहले खुद को बदलना होगा। हमारी ख्वाहिशात का मरकज ये दुनिया है। हमारे ख्वाब दुनियावी ख्वाब हैं और हमारे मकासद दुनियावी मकासद हैं। हमें मुखलिस होना पड़ेगा। हम में से ज्यादातर लोग अपने और अपने आराम के मुताल्लिक सोचते हैं। हमें अपना जायजा लेना होगा और वो दिल पाना होगा
जो अल्लाह के लिए धड़के। हमें इस्लाम के लिए बुलंद मकासद अपनाने होंगे। याद रखें, अजीम सुल्तान सलाहुद्दीन की तरह एक दिन हमारे जिस्म भी कफन में लिपटे होंगे और उन कफनों में कोई जेब नहीं होगी। दोस्तों, जिस दिन इस्लाम आ गया ना आपकी ज़िंदगी में, आज तो वो वाली जंग नहीं है कि नेज़े और भाला घोड़े और तलवार वाली जंग तो नहीं है, लेकिन जो मिसाइल और एटॉमिक पावर या जो सैनिक, जो आर्मी मिलिट्री पावर जिसके पास आज भी है, वो कुछ भी कर सकता है। और वो अगर इस्लाम, जैसे इस्लाम तुर्की है, जैसे इस्लामिक ममालिक है, तुर्की है या फिर ईरान है, ये सब के पास जितना वो है, एक मजबूत आर्मी मिलिट्री है, 14-15 नंबर पे आता है वर्ल्ड में, तो ये सब जो है, ये सब कुछ भी कर सकता है आज भी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आदमी को ये लगता है कि अल्लाह के यहाँ जब सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतकाल हो गया तो नेज़े में कफन को बांध के और पूरा मतलब गली गली में बताया गया लोगों को कि इस कफन के अलावा सलाहुद्दीन अय्यूबी कुछ लेके नहीं गया। सोचो। और एक और बात, इतनी जंग उन्होंने लड़ी लेकिन कहीं शहीद नहीं हुए, अपनी मौत से ही मतलब उठाया गया। तो इसलिए दोस्तों, जिसको अल्लाह चाहे, मतलब जैसी मौत देना वो अल्लाह के हाथ में है। लोग कहता है जंग में जाओगे तो मर जाओगे। ये देखो, इतनी जंग लड़ी सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, और कोई होता तो मतलब वैसे शहीद हो जाता। जितनी जंग लड़ी, बताया जाता है कि उनके कोई ऐसा मतलब बॉडी पार्ट्स, शरीर का वो हिस्सा नहीं है जो जंग में मतलब घायल न हुआ होगा, लेकिन फिर भी आखिरी वक्त में अल्लाह की अपनी मौत से मतलब इंतकाल हुआ। तो ऐसी तमाम वीडियो के लिए चैनल को लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।